साहब हैं, उनको मैं पेश करता हूं। सब लोग जो है हुजूर के मीलाद में नारे को बुलंद करें, पढ़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे रिसालत। منبر نور پر جلوہ بار جملہ مفتیان ذویل احترام علماء اہل سنت، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت وارث حضور پیارے ابا حضور رفیق ملت دام ظلہ العالی حفظہ اللہ ورعا، جملہ سامعین کرام، محترم سامعات، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے پیارے مرکز عقیدت حضور ارواح نافدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مفتی اکرم رضا ازہری صاحب بڑا جامع اور معنی خطاب فرما رہے تھے۔ ہم سماعت بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ یقیناً بہت جامع خطاب ہو چکا۔ میں اور آپ، میری اور آپ کی نظریں جس شخصیت پر جمی ہوئی ہیں اور جس کے انتظار میں میں اور آپ سب ہیں، یقیناً وہ ساعت سعید آنے والی ہے۔ میں بس 10-12 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ محفل میلاد ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے انہی کے درمیان ایک رسول عطا فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول کرے گا کیا؟ یہ لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کر دے گا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، انہیں کتاب و حکمت سکھائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلے ہوئے دلدل میں تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کو بہت دور نہ لے جاتے ہوئے
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो तारीख जो थी आप उसका मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि वो इंसान जो दरिंदा सिफत थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक ने उन्हें फरिश्ता सिफत बना दिया। वो इंसान जिन्हें गुलामी की चक्की में पिसते हुए सदियों साल गुजर गए थे, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नाज ने, उनकी नजर इनायत ने उनको जो है जमाने भर के लोगों के लिए उस्ताद बना दिया। वो इंसान जो पत्थरों को अपना खुदा समझ बैठा था, पत्थरों को अपना माबूद समझ बैठा था, अजीजान गिरामी वकार आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो लोग कि जिनके दिल भी पत्थर थे, जिनके जहनों में भी पत्थर थे, जिनके दिमागों में भी पत्थर थे और जिनके हाथों में भी पत्थर थे, वो पथरीली जमीन पर भी रहते थे, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत, मुअल्लिम इनकलाब, नबी इनकलाब, रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक ने उन्हें जो है इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि वो लोग जमाने भर के लोगों के लिए उस्ताद बन गए। वो लोग शराब जिनकी घुट्टी में थी, नशा जिनका शियार बन चुका था, इंसानियत सिसक रही थी, बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था, कुफ्र शिर्क और फिस्को फुजूर की वादियों में टहलते हुए और भटकते हुए जिन्हें सदियां गुजर चुकी थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको एकदम से बदल कर रख दिया। आप तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि वो अजीमुल मर्तबत हस्ती कि जिसकी आमद ने जाहिलों को मुअल्लिम बना दिया, वहशियों को मुतमद्दिन बना दिया, गुमराहों को रहबर बना दिया, रहजनों को रहनुमा बना दिया, लज्जत अय्याशों को जो है इफ्फत शियार बना दिया, लज्जत परस्तों को इफ्फत शियार बना दिया और गुलामों को आकाई के आदाब सिखा दिए। आप तारीख का मुताला और करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो रसूल आजम मुअल्लिम इंसानियत, रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी पाकीज़ा तालीमात ने जो है कि जिनकी पाकीज़ा तालीमात ने लाखों करोड़ों इंसानों को जिनकी पाकीज़ा तालीमात ने रंगों के फर्क को खत्म करके, कौमों के तासुब को खत्म करके, खित्तों के फासलों को खत्म करके, लाखों करोड़ों मीलों और फासलों को समेट करके लाखों करोड़ों इंसानों को वहदत इस्लामिया यानी एक उम्मत होने का शरफ बख्शा था। आप जरा तारीख का मुताला करें तो आपको यह भी मालूम होगा कि मक्का के कुरैश, मदीना के अंसार, फारस के सलमान, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा इकराम की जिंदगी आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि जिनके दरमियान एक भी चीज मुश्तरक नहीं थी, यानी एक भी चीज एक जैसी नहीं थी, ख्वाह वो तारीख के एतबार से हो, ख्वाह वो सकाफत के एतबार से हो, ख्वाह वो तहजीब के एतबार से हो, ख्वाह वो मुल्क के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, उनके दरमियान एक चीज भी नहीं थी। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक ने, उनकी नजर इनायत ने उन सबको एक बना कर रख दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आप मुझे बताएं कि इस मुहस्सिन आजम रसूल मुख्तार मुअल्लिम इंसानियत आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुसलमानों को करना क्या चाहिए? खुशी मनाना चाहिए या फिर गम मनाना चाहिए? फैसला आप करें। आप तारीख का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें तो आपको मालूम होगा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर गम किसने मनाया और गम तकलीफ किसको पहुंची। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं, इन्ना इब्लीस लानतुल्लाहि रन्ना अरबा रन्नात, कि इब्लीस जो है शैतान जिसको इब्लीस कहते हैं, वो अपनी जिंदगी में 4 मर्तबा बहुत रोया। रन्नतन हीना लोइना, पहली मर्तबा जब उस पर लानत की गई, व रन्नतन हीना उहबिता, दूसरी मर्तबा जब उसको आसमान दुनिया से उतारा गया, व रन्नतन हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी मर्तबा जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, व रन्नतन हीना उनज़िलत फातिहतुल किताब, और चौथी मर्तबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई यानी अलहम्दु शरीफ नाजिल हुई। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए उस मुअल्लिम इंसानियत रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाना ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है, और गम मनाना ये शैतान और इब्लीस का तरीका है। इसलिए हम और आप वो करते हैं जो सलफ़े सालिहीन ने किया, सहाबाए किराम ने किया, अंबिया ने किया, रसूलाने अज़ाम ने किया। बल्कि आगे बढ़कर बात कही जाए तो ये भी है कि हम और आप जो कर रहे हैं ये सुन्नत खुदाबंदी भी है, इसलिए कि इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और क्यों ना हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं, क्यों ना हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाएं, उनके नगमे गाएं, उनका जिक्र करें, उनके तस्करे करें, उनके मनाकिब पढ़ें। इसलिए कि ये उलमाए किराम, आप ये मत समझ लेना ये उलमाए किराम, ये सूफिया इज़ाम और ये मुहद्दिसीन इज़ाम आप पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र थोप रहे हैं या फिर उनकी मोहब्बत के आपके दिलों में जबरदस्ती डाल रहे हैं। नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया ही ऐसे है कि जिसने देखा है वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया है, जिसने देखा है वो इश्क करने पर मजबूर हो गया है। अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना हो, आपकी सूरत को पढ़ना हो, आपके अंदाज़े जिंदगी को पढ़ना हो, आपके अंदाज़े गुफ्तार को पढ़ना हो तो कुरान उठाओ। जुनैद बगदादी से सवाल हुआ था, क्या जुनैद बगदादी बताओ, क्या ये कुरान अजीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं है, तस्वीर नहीं है? इसलिए अजीजों, अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को पढ़ना हो तो उठाओ कुरान पाक और पढ़ो। अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को पढ़ना है तो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर उनकी आंखें मुबारक को पढ़ना है तो पढ़ो मा ज़ागल बसर व मा तगा। अगर उनके कदम मुबारक को पढ़ना है तो पढ़ो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर आपके सीने पाक को पढ़ना है, उठाओ कुरान अजीम और पढ़ो अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। अगर महबूब की अताएं देखना है तो कुरान अजीम को उठाओ और पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर। और कुरान अजीम को पढ़ना चाहते हो तो तफासीर से पढ़ने की कोशिश किया करो, और तफासीर किसी एरा गैरा नत्थु गैरा की लिखी हुई तफासीर को मत उठाया करो, ऐसे लोगों के बयानात को मत पढ़ा करो। अगर तुम्हें कुरान अजीम पढ़ना है तो कंजुल ईमान को पढ़ो, और कंजुल ईमान से पढ़ो जहां बरेली का इमाम तुम्हें यह बताएगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे जैसे अगियान ने पेश किया। माज़ल्ला उन्होंने लिखा कि रसूल हमारी तरह बशर थे, रसूल हमारी तरह माज़ल्ला उनको इल्म ऐसा था, उनको इल्म वैसा था। बल्कि नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कंजुल ईमान से पढ़ो जहां बरेली का इमाम इश्क और मोहब्बत में डूबकर तुमको यूं बताएगा कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आयब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे जिसमें तेरे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको कुछ समझ भी आया होगा। आइए हम और आप